Good afternoon students, welcome to today's video lecture of trigonometric limits. Let us first revise the results of trigonometric limits and then we will finish the remaining questions of exercise 13.1. So trigonometric limits के results जो आपको याद रखने हैं, पहला रिजल्ट जो आपको याद रखने को मैंने बोला था वो था cos x is less than, can you recollect? Cos x is less than sin x upon x. Cos x is less than sin x upon x is less than 1. Is less than 1 for 0 less than mod x is less than pi by 2. उसका मतलब x 0 नहीं है, उसका मतलब that is ये रिजल्ट ट्रू होता है किसके लिए? cos x is less than sin x upon x is less than 1 for 0 less than x less than pi by 2 first quadrant, as well as this result is true for cos x is less than sin x upon x is less than 1 is true for fourth quadrant minus pi by 2 less than x less than 0. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं रिजल्ट। फिर दूसरा क्या था कि mod of sin x, modulus of sin x is always less than equal to mod x for all x belongs to R. Modulus of sin x is less than equal to mod x for all x belongs to R. फिर मैंने आपको क्या रखने को बोला था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस ऑफ x इज 0, ये याद रखना है। फिर कौन सी थियरी हमने की थी कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ fx is 0, if limit x tends to 0 mod of fx is 0, then limit of fx without mod, limit x tends to 0 fx will be 0, limit x tends to 0 fx will be 0. ये सीधा रिजल्ट आपको याद रखना है। then if limit x tends to 0 mod of fx is 0, then limit x tends to 0 fx is also 0, और फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 के सिंस फॉर लिमिट एज लिमिट, सीधा मैं लिख देता हूं, एज लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x is 0, we have लिमिट x टेंड्स टू 0 x is 0, और रीजन क्या लिखने का? बिकॉज इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of fx अगर 0 है then limit of the same function around 0 without modulus is 0. सिंपल। फिर दूसरा कौन सा रिजल्ट था कि 1 minus x square by 2, 1 minus x square by 2 is less than, कितना था? cos x is less than equal to 1. 1 minus x square by 2, 1 minus x square by 2 is less than equal to cos x, is less than equal to cos x is less than equal to 1 for all x belongs to R. फिर हमने क्या रखा था कि sin is continuous, sin is continuous on its domain R, on its domain R. Sin is continuous on its domain R. Sin मतलब sin function, it's understood. Sin function is continuous on its domain R. फिर cos function, cos is also continuous, so cos is continuous on its domain क्या होता है? R. और इसका एप्लीकेशन क्या था? लिमिट x टेंड्स टू a, sin x क्या आना चाहिए? sin is continuous, तो ये क्या आएगा? sin a. एंड सेम वे लिमिट x टेंड्स टू a, cos x क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू a, cos x क्या आएगा? cos a. और हाँ, what is domain of sin R? So a can be any real number. What is domain of cos x? R. So a can be any real number. मतलब it is continuous at every real number a, so it is continuous on its domain R. सीधा रिजल्ट। ओके, फिर डायरेक्ट एक रिजल्ट आपको मैंने याद रखने को बोला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x क्या आना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू sin x, sin 0 0। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0
cos x इसकी जगह पे 0 सो तो cos 0 1, ठीक है। और अगर आपको ये रिजल्ट ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रहते तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अगर निकालना है तो sin 0 और वो 0, therefore लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इज 0। और हाँ, sin x कंटिन्यूस वो मैं नहीं लिख रहा हूं। और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अगर पूछा है तो cos इज कंटिन्यूअस फंक्शन, x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, cos 0 1, तो आपके लिए ये रिजल्ट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज 1। सिंपल। ओके, अब उसके बाद लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, वो तो आपको याद है। अब मैंने आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज 1। और हाँ, टेक्स्ट बुक में वो एग्जांपल दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, बट यू कैन यूज इट डायरेक्टली एज अ रिजल्ट। You can use it directly as a result. No teacher will give you wrong. हमने दो रिजल्ट्स किए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x 1. Limit is independent of variable, so that's why limit alpha tends to 0 sin alpha upon alpha 1. और अगर है थीटा वेरिएबल, so limit theta tends to 0 sin theta by theta is 1. और दूसरा रिजल्ट मैंने आपको क्या बोला था कि लिमिट x tends to a sin of fx whole upon fx, इसका लिमिट कितना आएगा 1। if sin of कुछ भी अपॉन कुछ भी किसको टेंड करना चाहिए, कुछ भी is fx is must approach 0 for fx tends to 0 जब x tends to a, ये आपको याद रखना है। फिर यही सेम लॉजिक हमने लगाया था tan में, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे उसमें क्या आता था, उसमें साइन वाले क्वेश्चंस भी आते थे। पर एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में अगर कुछ क्वेश्चंस में tan आता है तो आप ये रिजल्ट जो है वो यूज कर सकते हो सेम वे फॉर tan x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1, लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, सो अगर थीटा है सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा, tan थीटा बाय थीटा का लिमिट जब थीटा टेंड्स टू 0 1, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 tan अल्फा बाय अल्फा, tan अल्फा अपॉन अल्फा का लिमिट जब अल्फा टेंड्स टू 0 क्या आएगा 1। और उसी को मैंने जनरलाइजेशन कैसे दिया था आपको कि लिमिट वेरिएबल x है, x टेंड्स टू a, और हमारे पास क्वेश्चन में है tan ऑफ fx, तो tan ऑफ fx अपॉन fx सेट करने का, और tan ऑफ fx अपॉन fx का लिमिट 1 होगा इफ fx किसको अप्रोच करना चाहिए 0 फॉर x टेंड्स टू a, ये आपको याद रखना है। तो एक्चुअली दो ही रिजल्ट्स हैं, उसके अलग अलग फॉर्म में जो भी है, दिस रिजल्ट और ये रिजल्ट। अब और एक रिजल्ट है जो हम प्रूव करेंगे, एक लिमिट के फॉर्म में वो क्वेश्चन हम लिखते हैं, और वो रिजल्ट को हमको सीखना है, या वो रिजल्ट को हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। फाइंड, क्वेश्चन में लिखता हूं, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। फिर हम फाइंड 1 माइनस cos x अपॉन x। जो सब्जेक्टिव प्रूफ है इट इन्वॉल्व्स द थियरी ऑफ 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, फिर वो डेरिवेशन देख के वो सोचेंगे कि डेरिवेशन प्रूफ में आएंगे या स्कूल के एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको खाली ये रिजल्ट जो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया आपको याद रखना है, और फिर उसका एप्लीकेशन अच्छे तरीके से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिमिट आप निकालो। ओके, इसको L लिख के सॉल्व करो। व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा, व्हाट इज 1 माइनस cos x। जब भी क्वेश्चन में x टेंड्स टू 0 हो तो ट्राई करने का साइन या tan लेके आने का। तो L इसको मैं L लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर x by 2 अपॉन नीचे है x, बिकॉज
कैन यू रिकलेक्ट? 1 माइनस कॉस अल्फा कितना था? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आती है देन यू आर गॉन। हियर x टेंड्स टू क्या है? नाउ एज x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर ऑफ क्या है? x बाई 2 है, तो x बाई 2 किसको टेंड करेगा? 0 बाई 2। 0 बाई 2 क्या होता है? 0। तो उसका मतलब x बाई 2 टेंड्स टू 0, x बाई 2 टेंड्स टू 0। और इतना आप दो बार लिखो, सीधा ऐसा याद रखने का कि एज x टेंड्स टू 0, x बाई 2 टेंड्स टू, x की जगह पे 0 तो 0 बाई 2 0, तो x बाई 2 टेंड्स टू 0 आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 वैसे ही है तो यहां पे मैंने लिखा 2, फिर मैं लिखा साइन ऑफ साइन स्क्वायर x बाई 2 है, साइन स्क्वायर x बाई 2 है, इसलिए मैं लिखता हूं साइन x बाई 2। तो नीचे भी क्या होना चाहिए? x बाई 2 कैंसिल हो, साइन ऑफ कुछ भी, साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन क्या होना चाहिए? x बाई 2। तो यहां पे मैंने लिखा x बाई 2, ठीक है। 2 तो वैसे ही है तो वो मैंने सप्लाई किया, 2 को अलग से सेट करने की जरूरत नहीं है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इनटू, देखो मैं कैसे लिखता हूं, साइन ऑफ x बाई 2, 2 इनटू साइन स्क्वायर है इसे मैंने 2 लिखा, इनटू साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन मैं लिख रहा हूं x बाई 2, ओके, साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन x बाई 2। अब यहां पे क्वेश्चन में कितना है? साइन स्क्वायर x बाई 2, क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर x बाई 2, तो यहां पे साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 यहां पे मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो 2 सेट हो गया, 2 सेट हो गया है। साइन ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x बाई 2 भी सेट हो गया। अब अगर आप नीचे देखो तो ये x बाई 2 है, x बाई 2 का यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। x बाई 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे x स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर बाई 4 है, पर क्वेश्चन में क्या था? x यहाँ पे है x स्क्वायर बाई 4, x स्क्वायर बाई 4 में यहाँ पे x स्क्वायर है, पर क्वेश्चन में वहां पे x ही है, तो एक x एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वो x कैंसिल करने के लिए x, यहां पे मैं लिख रहा हूं x इन, यहां पे है x स्क्वायर बाय 4, तो ये 4 कैंसिल करने के लिए यहां पे मैं लिखता हूं 1 बाय 4। अगर आप ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये चीज आ जाएगी, सी हाँ 2 आ गया, साइन ऑफ x बाय 2 का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x बाय 2 आ गया। अगर आप इसको एक्सपांड करते हो x बाय 2 का स्क्वायर तो यहां पे क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 4, और ये x मैंने लिखा है, तो ये x और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये x और यहाँ पे x बाय 2 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाय 4, तो x सेट हो गया, तो ये x आ गया। और दूसरा ये 1 बाय 4 है और यहाँ पे x बाय 2 का स्क्वायर मतलब 1 बाय 4, और ये यहाँ पे 1 बाय 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा। आप समझ गए ये एडजस्टमेंट कैसे हुआ है? अब इधर नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है? 1, एंड लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट, ओके, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो इसका लिमिट मुझे ढूंढना है, तो अब मैं सीधा लिख सकता हूं देयरफॉर L इज लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इसलिए 2 इनटू ये sin थीटा बाय थीटा के फॉर्म में है, तो उसका लिमिट क्या आएगा? 1, सो क्योंकि x बाय 2 टेंड्स टू 0, सो 1 का स्क्वायर इनटू ये x क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, वो कंटीन्यूअस होता है, x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, इनटू 1 बाय 4 लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या है? 2 इनटू 0 into anything is 0, आपको क्या लिखना है? 2 into 1 into 0 into 1 by 4 that is 0। तो ये रिजल्ट आप ऐसे याद रख सकते हो, सो L is 0, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स को मे बी ये जो मैंने एडजस्टमेंट किया वो थोड़ा समझ में ना आया हो, तो उनके लिए ये सब मैं वापस करता हूं ताकि आपको रिजल्ट याद रहे। Therefore लिमिट x टेंड्स टू 0 L which is limit x tends to 0 1 minus cos x upon x कितना आया? 0। limit x tends to 0 1 minus cos x upon x is 0। आगे क्वेश्चन वापस लिखो।
और 1 माइनस cos x को आप लिखो 2 sin स्क्वायर x by 2 डायरेक्ट वो रिजल्ट है, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 1 माइनस cos अल्फा इज 2 sin स्क्वायर अल्फा by 2। सारे ट्रिगो के रिजल्ट्स आने चाहिए। अगर ट्रिगो के रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो फिर आपको डेरिवेटिव्स में जो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल है या यूजिंग डेफिनेशन है वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 1 माइनस cos x upon x, 1 minus cos x upon x. So therefore L is limit x tends to 0. 1 minus cos x क्या होता है? 2 sin square of x by 2. नीचे क्या है? x. Okay. अब आप देखो मैं कैसे लिखता हूं। As x tends to 0, सीधा आपको पता है x by 2 tends to x की जगह 0, 0 by 2 0। अब इतना लंबा चौड़ा लिखे बिना देखो मैं कैसे एडजस्ट करता हूं। ओके, sin स्क्वायर x by 2 है, sin स्क्वायर x by 2 है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज हैपनिंग। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। So therefore L becomes limit x tends to 0, 2 ऐसे ही रहेगा। ओके, sin स्क्वायर x by 2 है तो मैं उसको लिखता हूं sin of x by 2 अपॉन x by 2, ये पहला आ गया। दो बार आप लिख दो sin of x by 2, sin of x by 2 अपॉन x by 2, ये भी चलेगा। और अगर ऐसे 5 फंक्शन होते तो 5 बार लिखते, इसलिए मैंने स्क्वायर करके डायरेक्ट लिखा था। और अगर किसी को डाउट है इसलिए मैंने लिखा ये 2 एडजस्ट हो गया, 2 सेट हो गया, sin x by 2 मतलब sin स्क्वायर x by 2 भी सेट हो गया। अब क्वेश्चन में वहां पे क्या है? x, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? x, तो ये एक x सेट हो गया तो उसके लिए x एक्स्ट्रा सप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे x by 2 और x by 2 मतलब 1 by 2 1 by 2, तो 1 by 4 सप्लाई हो रहा है। या फिर वो कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 by 2 into 1 by 2। ये 1 by 2 कैंसिल करेगा इस 2 को, ये 1 by 2 ये 2 कैंसिल करेगा इस 2 को। अब ये x यहाँ पे सेट हो चुका है, तो ये x कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पे x अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? वेरी नाइस। सो यहाँ पे मैं लिखा sin of x by 2 अपॉन x by 2, यहाँ पे मैं लिखा sin of x by 2 अपॉन x by 2। अब आप समझो कि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में एक x है तो ये x वो है। अब ये 1 by 2 कैंसिल करने के लिए मैं इधर लिखता हूँ 1 by 2, ये 1 by 2 कैंसिल करने के लिए मैं लिखता हूं 1 by 2। So 1 by 2 into 1 by 2 into ये x कैंसिल करने के लिए यहां पे मैं x लिखता हूं। Now limit theta tends to 0, sin theta by theta is 1 और x by 2 इसको टेंड कर रहा है, इसको हाईलाइट करो 0। So x by 2 थीटा की जगह पे sin by 2 है। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए रेडी है। लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट 2, ये sin थीटा by थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 उसका लिमिट 1, sin थीटा by थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 उसका लिमिट 1, 1 by 2 कांस्टेंट उसका लिमिट 1 by 2, 1 by 2 कांस्टेंट उसका लिमिट 1 by 2। x लीनियर पॉलिनोमियल है, x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट करो, 0 into anything is 0, फिनिश्ड। आई होप दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब ये रिजल्ट कैसे आया इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये रिजल्ट दे हैव गिवन, यू कैन यूज दिस, और आपको याद रखना है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन x क्या आएगा 0। ओके, नाउ लिमिट इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। तो ज्यादा कुछ सोचे बिना, मतलब अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? देयरफॉर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा, वो भी क्या आएगा 0। और आप समझो ये लिमिट कौन से फॉर्म में है कि लिमिट x टेंड्स टू, सो सिमिलरली मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस cos x अपॉन x, और x किसको अप्रोच करना चाहिए 0, 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचिंग 0 तो लिमिट क्या आएगा 0। सो 1 माइनस cos ऑफ में क्या लूंगा fx, तो नीचे भी क्या होना चाहिए fx। सो 1 माइनस cos x, लिमिट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ fx अपॉन fx, उसका लिमिट क्या आएगा 0 if fx किसको अप्रोच करना चाहिए, fx अप्रोच करना 0 चाहिए फॉर x टेंड्स टू a। ठीक है,
सेम वे, वही लॉजिक, लिमिट x टेंड्स टू वो जो sin x अपॉन x में मैंने आपको समझाया था। ओके, दिस इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पर ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अच्छे तरीके से आप याद रखो। तो देयरफॉर रिजल्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x, 1 माइनस cos x अपॉन x से चाहिए, पर x इसको टेंड करना चाहिए 0, तो उस पूरे का लिमिट क्या, अंडा। लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, थीटा की जगह पे अल्फा लिखो, अल्फा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos अल्फा अपॉन अल्फा। सो 1 माइनस cos अल्फा अपॉन अल्फा का लिमिट व्हेन अल्फा टेंड्स टू 0 कितना आएगा, 190। याद रखना है, दिस इज योर रिजल्ट। काफी टाइम्स बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस इस लॉजिक से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। एंड सिमिलरली लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a 1 माइनस cos ऑफ कुछ भी, मतलब cos ऑफ fx अपॉन कुछ भी की जगह पे fx। सो लिमिट ऑफ 1 माइनस cos x लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस cos ऑफ fx अपॉन fx, ये लिमिट कितना आएगा, 0। इफ fx किसको अप्रोच करना चाहिए, fx मस्ट अप्रोच 0 फॉर x टेंड्स टू a। सिंपल, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी नाइसली यू हैव डन एंड अंडरस्टूड, बराबर। अब इसका एप्लीकेशन अगर हम करें तो लेट अस फिनिश ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.1। ओके, एक्सरसाइज 13.1 में कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, so let us finish off those questions. First 17th बाकी था, L limit x tends to 0 cos 2x minus 1 upon cos x minus 1। एक मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो कि आपका आंसर मेरे से पहले आ जाए। So L is लिमिट x टेंड्स टू 0, और आप ध्यान से देखो कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस में लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, या वेरिएबल उन्होंने x रखा है, इसलिए x टेंड्स टू 0 ही है। तो जब भी x टेंड्स टू 0 हो तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में साइन फंक्शन या tan फंक्शन लाना चाहिए, और आपको फॉर्मूला पता है 1 माइनस cos अल्फा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से -1 निकालो, दोनों हो जाएंगे 1 माइनस cos अल्फा के फॉर्म में, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस cos x और 1 माइनस cos 2x, और फिर है 1 माइनस cos x। तो न्यूमरेटर में से -1 कॉमन निकाला तो हो गया 1 माइनस cos 2x, डिनोमिनेटर में से -1 निकाला हो गया 1 माइनस cos x, -1 कैंसिल हो गया, क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। ओके, अब आपको फॉर्मूला पता है ना, 1 माइनस cos x क्या होता है, सॉरी 1 माइनस cos अल्फा मैं लिखता हूं, 1 माइनस cos अल्फा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है, then you're calling for trouble. So therefore L कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x, और नीचे आएगा 1 माइनस cos x आएगा 2 sin स्क्वायर ऑफ x बाय 2। सिंपल, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाय 2, क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x by 2। Here as x tends to 0, x by 2 किसको अप्रोच करता है, as x tends to 0 x by 2 0 by 2 0 होगा, x by 2 approaches 0। तो क्वेश्चन को देखो अब मैं कैसे सेट करने वाला हूं, sin स्क्वायर x, अब 4 बार तो नहीं लिखेंगे, so try to understand। अगर क्यू क्यू होगा तो क्या 3 और 3 6 बार लिखेंगे क्या, सो L is try to understand लिमिट x tends to 0, वहां पे sin स्क्वायर x है, सो आई विल राइट sin x अपॉन x, और उसका मैंने स्क्वायर कर लिया, तो sin x अपॉन x स्क्वायर कर दिया, तो sin स्क्वायर x सेट हो गया, और नीचे x स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में मैं लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर में मैं लिख रहा हूं sin ऑफ x by 2,
ब्रैकेट किया मैंने और न्यूमरेटर में मैं लिख रहा हूं x/2 बिकॉज़ sin थीटा का यहां पे sin स्क्वायर ऑफ x/2 sin स्क्वायर ऑफ x/2 तो यहां पे मैंने स्क्वायर दिया। अब आप चेक करो sin x का स्क्वायर sin स्क्वायर x सेट हो गया, sin x/2 का स्क्वायर sin स्क्वायर x/2 सेट हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो x का स्क्वायर यहां पे x का स्क्वायर और यहाँ पे x/2 का स्क्वायर तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर, तो वो सेट हो चुके हैं, वो कैंसिल हो चुके हैं, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है x/2 का स्क्वायर मतलब x²/4, तो मैंने 1/4 सप्लाई किया है, तो 1/4 कैंसिल करने के लिए 4 लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करके देखोगे तो ये sin स्क्वायर x होगा, सेट हो गया, sin ऑफ x/2 का स्क्वायर sin स्क्वायर x/2 सेट हो गया, x/2 का स्क्वायर क्या होगा x/4 वो 4 x/2 का स्क्वायर x²/4 वो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x² और ये x² दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सही है। वी हैव नॉट चेंज द क्वेश्चन। नाउ लिमिट अल्फा टेंड्स नहीं, नाउ ये रिजल्ट कौन से फॉर्म में है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज 1 एंड लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। See, you don't write this result, it's fine. Trigonometric result please लिखो because that is what the teachers are expecting in 2 mark question of subjective. So L ये कौन से फॉर्म में है, sin थीटा बाय थीटा थीटा टेंड्स टू 0 उसका लिमिट 1, so 1 का स्क्वायर। ये थीटा अपॉन sin थीटा रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, तो इसका लिमिट कितना आएगा 1/1 का स्क्वायर और लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट 4, तो L कितना आएगा 1 into 4 which is 4, so L is 4. Check the answer. Question number 17 4 है आंसर, 17 हो गया। Now 18 हो चुका, 19 20 हो चुका, 21 और 22 21 और 22 ओके। तो अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, वरना आपको मजा नहीं आएगा। Now 21 22 are remaining, so find L कितना है, L is limit x tends to 0 cosec x minus cot x। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, तो cosec कंटीन्यूअस और cot कंटीन्यूअस, तो x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नो, cosec 0 undefined, cot 0 undefined, डायरेक्टली आप x की जगह पे 0 सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए क्या करने का, आप cosec try to convert in sin and cos। what is cosec x, 1 upon sin x। what is cot x, it is cos x upon sin x। तो कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ sin and cos में ही सब कुछ ट्राई टू कन्वर्ट, तो L हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। what is cosec x, 1 upon sin x minus what is cot x, cos x upon sin x। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है sin x, तो 1 minus cos x upon sin x। अब रिजल्ट अभी जो आज मैंने सिखाया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x upon x क्या होता है 0, तो इसके लिए ना as x tends to 0 x cannot be 0, इसलिए मैं x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, क्योंकि लिमिट में x अप्रोच इज 0, x इज वेरी वेरी नियर टू 0 बट x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूं x से। ठीक है, अब दो रिजल्ट्स हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या था 1, और अभी जो रिजल्ट मैंने आपको सिखाया 1 माइनस cos x अपॉन x, ये रिजल्ट क्या था 0, सो L क्या आएगा, ये रिजल्ट क्या है 0 इनटू sin x अपॉन x का लिमिट, sin x अपॉन x का लिमिट where x टेंड्स टू 0 1, तो x अपॉन sin x का लिमिट where x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1, तो L कितना आएगा 0 इनटू 1 कितना आएगा 0, तो L कितना आया 0। इजी क्वेश्चन था, अगर आप रिजल्ट नहीं लिखते तो सीधा लिखो इसका 0 इनटू 1 अपॉन 1 0 ही होता है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 0 21 का आंसर। ओके, नाउ डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, cosec x cosec 0 अनडिफाइंड,
1 upon sin 0, sin 0 0, cot 0 undefined because cos 0 upon sin 0, इसलिए cosec को मैंने 1 upon sin लिखा, cot को मैंने cos upon sin लिखा, कॉमन डिनोमिनेटर है हमारा sin x, 1 minus cos x upon sin x, x नॉन जीरो है इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और ये रिजल्ट है 1 minus cos x upon x का लिमिट 0 होता है और लिमिट x into sin x upon x 1 होता है, सिंपल। L is 0। now क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद ट्राई करो, सोचो कैसे करना है, सोचो कैसे करना है। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए। L is limit x tends to pi by, ओके x tends to 0 नहीं है इसमें, tan of 2x, tan of 2x whole upon x minus pi by। अब आप समझो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो x tends to pi by 2 और ट्रिगो का कोई क्वेश्चन हो, ट्रिगो का 2 मार्क 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन हो, लिमिट का क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हो, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, यहाँ पे x टेंड्स टू क्या है पाई बाय 2, x टेंड्स टू है पाई बाय 2। तो क्या करने का, जब भी ऐसा हो तो x टेंड्स टू क्या है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस x को थीटा ले लेने का, x टेंड्स टू क्या है यहाँ पे, अगर x टेंड्स टू पाई बाय 2 है तो मैं करूंगा लेट, ओके x किसको अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2, x अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2, तो जब भी x टेंड्स टू पाई बाय 2 हो या x टेंड्स टू a हो तो क्या करने का, x माइनस a को थीटा ले लेने का। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट निकालना हो तो यहाँ पे here x टेंड्स टू क्या है पाई बाय 2, here x टेंड्स टू क्या है पाई बाय 2, तो लेट x माइनस पाई बाय 2 को थीटा ले लो, x माइनस पाई बाय 2 को थीटा ले लो, वेरिएबल x से थीटा में होने वाला है ना, x किसको टेंड कर रहा है पाई बाय 2, तो x माइनस पाई बाय 2 किसको टेंड करेगा, x की जगह पाई बाय 2 सोचो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, सो देयरफॉर x माइनस पाई बाय 2, x माइनस पाई बाय 2 किसको टेंड कर रहा है 0 को, वो थीटा है, सो थीटा टेंड्स टू 0, सिंपल। नाउ हियर x माइनस पाई बाय 2 क्या है थीटा, तो therefore वेरिएबल x को पूरा थीटा में कन्वर्ट करना है तो x की जगह पे क्या आएगा पाई बाय 2 थीटा प्लस पाई बाय 2, बट वी विल प्रेफर टू राइट ऑब्वियसली पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क बट मे बी द स्कूल टीचर माइट आस्क फॉर 2 मार्क्स। So x tends to pi by 2 था, here limit x tends to क्या था pi by 2। क्वेश्चन में वापस लिख रहा हूं, L is limit x tends to pi by 2 और क्वेश्चन में है tan of 2x upon x minus pi by 2, तो x tends to pi by 2 है तो कौन सी चीज 0 को टेंड करेगी, x minus pi by 2 को मैंने थीटा लिया, x minus pi by 2 को मैंने थीटा लिया, x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, x की पाई बाय 2 रखो तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, सो थीटा टेंड्स टू 0 आ जाएगा और x माइनस पाई बाय 2 थीटा है तो x आएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा। सब्स्टिट्यूट करो क्वेश्चन में, देयरफॉर L इज x टेंड्स टू पाई बाय 2 तो थीटा किसको टेंड कर रहा था 0, tan ऑफ 2 इनटू tan ऑफ 2x है, ये tan ऑफ 2x है, वैसे लिखो तो कैन आई राइट दिस एज tan ऑफ 2 टाइम्स x क्या है पाई बाय 2 प्लस थीटा और नीचे सिंपल x माइनस पाई बाय 2 क्या है थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 आ गया, सो L इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 इनटू पाई बाय 2 प्लस 2 इनटू थीटा अपॉन थीटा। अब क्वेश्चन जरा समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप डाइजेस्ट के कोई और सॉल्यूशन देखोगे तो हमारे सॉल्यूशन में अगर ऐसे क्वेश्चन में 10 से 12 स्टेप लिख रहा हूं, उनका सॉल्यूशन मैक्सिमम 4 से 6 स्टेप में खत्म हो जाएगा, हमारा हाफ होगा, बट डोंट थिंक कि उनकी सॉल्यूशन बेटर है, अवर सॉल्यूशन इज बेटर, व्हाई बिकॉज़ वी आर राइटिंग ऑल द स्टेप्स। so tan of 2 into 2 गेट्स कैंसिल तो कितना आएगा पाई प्लस 2 थीटा अपॉन थीटा। अब आपको पता है tan ऑफ पाई प्लस अल्फा क्या आएगा, tan ऑफ पाई प्लस अल्फा क्या आता है, tan ऑफ पाई
प्लस अल्फा। tan of pi plus alpha क्या होता है? pi plus alpha is in which quadrant? Now tan of pi plus alpha के फॉर्म में है pi plus 2 theta. tan of pi plus alpha, pi plus alpha third quadrant, tan is positive and at a and a dash the function doesn't change, so tan of pi plus alpha is tan alpha. तो ये लिमिट L आ जाएगा, लिमिट theta tends to 0, tan of pi plus 2 theta कितना आएगा? tan of 2 theta अपॉन थीटा। और यहां से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो कि एज थीटा टेंड्स टू 0, 2 into थीटा किसको टेंड करेगा? 2 थीटा, 2 into 0, 0 को टेंड करेगा। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 2 थीटा, तो 2 को सप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को आपको सप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर L लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan ऑफ मैंने लिखा 2 थीटा, तो नीचे भी क्या आना चाहिए? 2 थीटा, और थीटा तो है, ये 2 कैंसिल करने के लिए मैं 2 लिख रहा हूं, और ये रिजल्ट थीटा ऑलरेडी यूज है, तो मैं अल्फा वाला फॉर्मूला लिखूंगा कि लिमिट नाउ लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, tan अल्फा अपॉन अल्फा इसका लिमिट 1 आता है, एंड लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ठीक है, x वेरिएबल और k कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई, सो वो रिजल्ट आप लगा दोगे। सो L इज, और हां ये कौन से फॉर्म में है? tan of 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, 2 थीटा इसको अप्रोच कर रहा है 0, तो ये कौन से फॉर्म में हो गया? tan अल्फा अपॉन अल्फा का लिमिट जब अल्फा टेंड्स टू 0, tan 2 थीटा अपॉन थीटा का लिमिट जब 2 थीटा टेंड्स टू 0, तो लिमिट कितना आएगा? 1, एंड लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सो 1 into 2, सो L लिमिट का आंसर मस्ट बी 2। Check the answer. Yes, 2. So that finishes the exercise. That finishes the exercise 13.1. मतलब लिमिट जितना आपको टेक्स्ट बुक में दिया है इतना ही है। अब जो भी पोर्शन है, whether exercise 13.2 in the chapter या miscellaneous exercise, it involves only derivatives. But what I will do is that limit के थोड़े extra questions are there in the supplementary material. So I will finish off that supplementary material का portion. वो है supplementary material page number just given on page number 480. So supplementary material for limits आप हम करेंगे पहले supplementary material page number 480 to 80, 81, 82, 83 till 480. Okay. Just 1 minute. Let me have some water and then I will continue. So now limits involving, this has limits involving, you can say logarithmic functions and exponential functions. तो आपको खाली याद रखना है limits involving exponential function and logarithmic functions. तो आपको खाली याद रखना है कि exponential function क्या होता है? exponential function होता है fx is equal to e raised to x. fx is equal to e raised to x is exponential function, और उसका डोमेन होता है, आपको याद रखना है कि डोमेन उसका r होता है और उसकी रेंज r प्लस होती है। उसका कोड डोमेन जो टेक्स्ट में दिया है is r plus, let me see, its कोड डोमेन is r, okay, what they have given exponential function, okay, we will take that way only. Okay, what I will do is that it's a function from r to r plus, okay, exponential function fx is e raised to x is exponential function, डोमेन हमेशा r होगा, को डोमेन डिफरेंशिएबल है, कुछ बुक्स में r प्लस लिखते हैं, कुछ बुक्स में r लिखते हैं, ओके, और रेंज आपको याद रखनी है कि रेंज will be r plus, range will be r plus, range
will be r plus, range will be r plus. तो आपको क्या याद रखना है, just 1 minute, let me see. Okay, it's a function. Fair enough. So आप याद रखो कि इसका डोमेन, just focus only on domain and range. तो याद रखो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to x है, एक्चुअली बेस तो कुछ भी हो सकता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx is equal to e raised to x is एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो f डोमेन क्या है, मैं r रखता हूं और को डोमेन r प्लस रखता हूं, r प्लस. तो fx e raised to x, जहां पे x डोमेन में होना चाहिए, डोमेन क्या है r, x belongs to r is एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और आपको याद रखना है इसकी रेंज क्या है, r प्लस, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब इन द डोमेन, इसकी रेंज क्या है r प्लस. तो e raised to x is always greater than 0. ये आपको याद रखना है कि इसकी रेंज r प्लस है, इसके लिए e raised to x is always greater than 0. e raised to x is always greater than 0. और आप ये याद रखो कि ये जो वैल्यू है e, that value e is an irrational number here. ये जो e आ रहा है here, ये जो e है e raised to x में is an irrational number, और उसका approximate value is 2.71 dot. That is approx. तो उसका मतलब this value is between 2 and 3. तो e का value, e is an irrational number between 2 and 3. So therefore आपको याद रखना है 2 is less than, e is an irrational number between 2 and 3. Okay. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको क्या याद रखना है, e raised to x, बट ऑलवेज इट इज नॉट e raised to x, a raised to x भी हो सकता है. तो वो करके दूसरा लिखो कि fx is equal to a raised to x is एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, उसका डोमेन हम क्या रखेंगे, डोमेन याद रखना है, डोमेन r, रेंज r प्लस, मतलब फंक्शन fx a raised to x, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा. और कोडोमेन इट डिफर्स, इन मेनी बुक्स इट इज r, एंड समटाइम्स इट इज r प्लस. सो r प्लस और r, सो डिपेंड्स r प्लस और r. तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन f इज फ्रॉम, मैं कोडोमेन प्रेफर करूंगा r प्लस, r टू r प्लस fx is a raised to x, x belongs to r is exponential function. और हाँ, e raised to x, fx is e raised to x. e एक पर्टिकुलर irrational नंबर, यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे a raised to x में a बेस होता है, fx is equal to a raised to x में a बेस होता है, और x इंडेक्स या एक्सपोनेंट के पावर बोलते हैं आप. तो वो जो e आएगा, e आपने e सीखा होगा, log to the base e. तो e वो है जो है irrational number between 2 and 3. e is irrational. ठीक है, ओके. नाउ e is irrational number between 2 and 3. e is an irrational number between 2 and 3. तो इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और दूसरा आपको याद रखना है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r व्हिच इज इन द डोमेन, इसका रेंज क्या है, पॉजिटिव. सो a raised to x इज ग्रेटर देन 2. सिंपल. ओके, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको याद रखना है fx इज इक्वल टू log x टू द बेस e. इसको कैसे पढ़ेंगे, log x to the base e. fx is equal to log x to the base e is logarithmic function. ठीक है. और आपको याद रखना है कि इसका डोमेन
इसका डोमेन R प्लस, फिर कोडोमेन R और रेंज R याद रखने का। ओके, सो what you will remember, you must remember this as therefore f is logarithmic फंक्शन का डोमेन क्या है? R प्लस, सो R प्लस कोडोमेन R और f of x is log x to the base e। इसका डोमेन क्या है? R प्लस, तो f of x का बिलोंग करना चाहिए डोमेन में, सो x belongs to R प्लस is logarithmic function। और आपको पता है कि अगर x 1 आएगा तो log 1 0, और अगर x 1 से बड़ा आएगा तो log का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और x का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आता है, हाफ है कुछ भी, तो उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। सो फॉर all x belongs to R प्लस, जो डोमेन में है, जो log x है, log x can be any real number, log x to the base e is always a real number, it belongs to R। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये है थियरी फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है? अब इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको याद रखने हैं वो ये हैं, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ओके, फर्स्ट इज लिमिट h tends to 0, टेक्स्ट बुक में x लिखा है, ओके, x ओनली, तो आप समझ जाओ पहला रिजल्ट, लिमिट x tends to 0 a raised to x फिर -1 upon x, लिमिट x tends to 0 a raised to x -1 upon x। इसका आंसर आपको याद रखना है log a to the base e। प्लीज रिमेंबर दिस। और हाँ, ये आप यूज कर सकते हो, हमारे टेक्स्ट बुक में हर एक जगह पे a की जगह पे e है, पर आप ये यूज कर सकते हो बिकॉज दैट इज द वे दे हैव अप्रूव्ड फॉर द NCERT सिलेबस। तो यस, यू कैन डू दिस रिजल्ट। अब लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, तो आप कैसे लिख सकते हो? x की जगह पे h, तो h टेंड्स टू 0, a रेज़ टू h होना चाहिए -1 अपॉन h। इसका आंसर क्या आएगा? log a टू द बेस e। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप समझो कि लिमिट x टेंड्स टू a हो, लिमिट x टेंड्स टू a, ये रिजल्ट क्या है? a रेज़ टू x -1 अपॉन x, और x किसको अप्रोच कर रहा है? 0, तो पूरे का लिमिट log a टू द बेस e। सो a रेज़ टू x -1, x है तो x चाहिए और x अप्रोचिंग 0, तो इसका लिमिट log a टू द बेस e। सेम थिंग h में, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू a रेज़ टू, अगर fx है a रेज़ टू fx तो -1 अपॉन क्या होना चाहिए? f ऑफ x। तो इसका आंसर क्या आएगा? log a टू द बेस e if fx किसको अप्रोच करना है? h tends to 0, if f of x approaches 0 for x tends to a। ठीक है, याद हो गया अच्छी तरीके से? ये रिजल्ट आपको याद रखना है, आपको सीधा ये रिजल्ट याद रखना है। फेयर इनफ? कैसे याद रखना है? देखो, वापस एक बार लिख दो तो लर्न हो जाएगा। फिर यू मस्ट राइट दिस रिजल्ट। मैंने अभी 2 बार लिखा है, 3 बार फिर भी इसका एप्लीकेशन, तो आप समझ जाओ पहला रिजल्ट, लिमिट x tends to 0, a raised to x -1 upon x, क्या आएगा? log a to the base e। फिर इसी चीज को लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, सो h टेंड्स टू 0, a raised to x -1 upon x, और x इसको अप्रोच करना चाहिए 0, तो पूरे का लिमिट log a to the base e। सो लिमिट a raised to h -1 upon h, limit h tends to 0, limit h tends to 0, limit h tends to 0, a raised to x -1 upon h,
इसका लिमिट क्या आना चाहिए, log a to the base e because h tends to 0. सिंपल. अब इसी चीज को मैं कैसे लूंगा, therefore limit x tends to a raised to fx minus 1, इससे क्या होना चाहिए fx. तो ये पूरे का लिमिट क्या आएगा, log a to the base e if यहां पे fx किसको अप्रोच करना चाहिए 0, जब x a को अप्रोच करेगा. अब पहले तो रिजल्ट याद रखो, वो भी बहुत अच्छा है बिकॉज दैट इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो रिजल्ट्स ही आपको याद रखने हैं. ओके, तो क्लियर मिला. टफ इतना तो नहीं है, और अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो फिर ये सम्स करने में आपको मजा नहीं आएगा. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व. ये हो गया. नाउ सेकंड रिजल्ट इज, एक ही जगह पे आप ई लिख दो, एक ही जगह पे आप ई लिख दो. आपको ये रिजल्ट पता है कि नाउ आपको ये पता होगा log a to the base a क्या होता है 1. ऑन द सेम बेसिस log e to the base e 1 होता है, या log x to the base x 1 होता है. ये आपको पता है, याद रखने का काफी बार यूज किया होगा. log a to the base a 1, log a to the base a 1, log x to the base x 1, याद रखो. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x minus 1 अपॉन x, e रेज टू x minus 1 अपॉन x. कौन से फॉर्म में, देखो वही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x minus 1 अपॉन x. क्या आएगा, log a to the base e. व्हाट इज log a to the base e, एक ही जगह पे आ क्या है e, तो ये क्या आएगा log e to the base e. तो टेक्स्ट बुक वाला डायरेक्ट ये रिजल्ट दे रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x minus 1 अपॉन x. लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x minus x क्या आएगा, log e to the base e 1. मैं ऐसे करता हूं बिकॉज़ आई प्रेफर a, और e आएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा. अब आपको पता है लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. तो आप क्या लिखोगे, therefore अगर एग्जाम में आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू x minus 1 अपॉन h, कौन से फॉर्म में है, h टेंड्स टू 0 e रेज टू x, a रेज टू x minus 1 अपॉन h क्या होता है, log a to the base e. तो ये क्या हो जाएगा, log e to the base e, और log e to the base e 1. तो आप क्या याद रखोगे, therefore लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू x minus 1 अपॉन h, ये क्या आएगा 1. सिंपल. आपको ये फॉर्म आइडेंटिफाई करना है, आपको ये फॉर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आपको ये सॉल्व करना है. ये रिजल्ट याद रखना है और ये रिजल्ट याद रखना है. therefore ये रिजल्ट को मैं e रेज टू fx के फॉर्म में लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a e रेज टू fx minus 1 अपॉन fx. क्या आएगा, क्या आएगा आंसर डायरेक्टली. ये आंसर क्या आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, अगर इसका आंसर आना चाहिए log e to the base e equal to 1. if fx किसको अप्रोच करे, fx किसको अप्रोच करे 0 for x tends to a. लिमिट x tends to a e raised to fx minus 1 upon fx. उसका लिमिट हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर fx 0 को टेंड करता है for x tends to a, तो वो हो जाएगा log e to the base e which is 1. आप डायरेक्टली रिजल्ट क्या करो, अंडरस्टूड. तो अब इसी रिजल्ट को और एक बार लिख लो, इसी रिजल्ट को और एक बार लिख लो, तो ये लॉग हो जाएगा. तो ये रिजल्ट, सो देयरफॉर ये सेकंड रिजल्ट क्या था, ई था उसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x minus 1 अपॉन x, x टेंड्स टू 0 और e आएगा तो सीधा आंसर याद रखो 1. फिर लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू h minus 1 अपॉन h क्या आएगा, वो भी 1 आएगा. और उसी लॉजिक पे लिमिट
आपको याद रखना है लिमिट x टेंड्स टू a e रेज टू fx माइनस 1 अपॉन fx का लिमिट, इसका लिमिट अब समझो e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h अप्रोचिंग 0 पूरे का लिमिट 1, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x उसका लिमिट जब x टेंड्स टू 0 1, तो e रेज टू कुछ भी माइनस 1 अपॉन कुछ भी, e रेज टू कुछ भी माइनस 1 अपॉन कुछ भी, वो कुछ भी किसको अप्रोच करना चाहिए, वो कुछ भी किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए जब x टेंड्स टू a, तो इसका लिमिट आएगा 1 if fx किसको अप्रोच करेगा 0 फॉर x टेंड्स टू a। ओके, ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और इसके अलावा लॉगरिथमिक भी है एक रिजल्ट जो आपको याद रखना है, सिंपल रिजल्ट है, नथिंग एल्स, एंड देन वी कैन गो टू दैट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इजी है। ओके, थ्योरम 6 के फॉर्म में था और ये थ्योरम 7 के फॉर्म में है। ओके, आपको याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x to the base e upon x, समझो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x, log के लाइन में आता है, log of कैसे पढ़ेंगे, log of 1 plus x to the base e अपॉन क्या होना चाहिए x, तो इसका आंसर सीधा आपको याद रखना है 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड रिजल्ट कैसे फॉर्म है, x किसको अप्रोच कर रहा है 0, x किसको अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है 0, तो log of 1 plus कुछ भी to the base e अपॉन वो कुछ भी, और कुछ भी किसको टेंड करता है 0, तो उसका लिमिट 1। तो x की जगह पे आपको क्या याद रखना है, से h, so limit h tends to 0 log of 1 plus h to the base e upon h, log of 1 plus h upon h, 1 plus h upon h होना चाहिए, log का बेस e होना चाहिए, और h अगर e 0 का अप्रोच करता है तो इसका लिमिट 1। सेम वे log of अगर x लिमिट x टेंड्स टू a है और मेरे पास है log of 1 plus कुछ भी मतलब fx, तो बेस e होना चाहिए अपॉन fx होना चाहिए, तो इस पूरी चीज का लिमिट क्या है, इस पूरी चीज का लिमिट क्या आना चाहिए 1, और 1 कब आएगा, अगर वो कुछ भी fx किसको अप्रोच करना चाहिए, वो fx 0 को अप्रोच करना चाहिए जब x टेंड्स टू a। इस पूरे का लिमिट if अगर fx log of 1 plus fx अपॉन fx है, fx अगर 0 को अप्रोच करता है for x tends to a, तो ये रिजल्ट इस फॉर्म में हो गया, इसका लिमिट कब क्या आएगा 1। इजी, ठीक है, तो ये तीसरा रिजल्ट आपको याद रखना है। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन को डोमेन दिया है वो एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये तीन रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। तो देयरफॉर ये थर्ड रिजल्ट हो जाएगा कैसे, लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू 0, लिमिट x वेरिएबल टेंड्स टू 0 log of 1 plus x, 1 plus वेरिएबल x to the base e upon x, तो इसका लिमिट क्या आएगा 1। अगर वेरिएबल x की जगह पे h होगा तो मैं लूंगा लिमिट ऑफ वेरिएबल x टेंड्स टू 0 log of 1 plus वेरिएबल h to the base e upon h, h approaching 0, तो इसका लिमिट 1। और लिमिट x टेंड्स टू a log of 1 plus कुछ भी मतलब फंक्शन इन x to the base e upon वो भी fx, तो log of 1 plus fx upon fx पर log का बेस क्या होना चाहिए, log का बेस e होना चाहिए। अगर e नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर वो चेंज ऑफ बेस एंड ऑल दोस फॉर्मूलाज आर नॉट देयर, ऐसा होगा तो आई माइट गिव इट टू यू लेटर ऑन। सो दिस इफ fx approaches 0 for x tends to a, तो इसका लिमिट क्या है 1, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये तीन रिजल्ट्स अच्छे तरीके से हमने कर दिए। सो
what I will do now. Okay. Yes, there are two questions in the illustrations भी है. एक बार वापस क्विक रिवीजन कर देते हैं. तो पहला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और वो सब डेरिवेशन मैं आपको बताऊं, उससे बेटर है मैं ये तीनों रिजल्ट लिख देता हूं और ये तीनों रिजल्ट पे जो तीन एग्जांपल्स हैं वो मैं सॉल्व कर दूंगा. आई बिलीव दैट विल बी बेटर. जस्ट अ मिनट. यस, बिकॉज़ एक्सरसाइज में अराउंड देयर आर 7 to 8 क्वेश्चंस, तो बेटर है कि वो मैं बाद में करूं. तो पहले जो रिजल्ट मैंने आपको सिखाया वो क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 या लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू x minus 1 upon x क्या था? log a to the base e. Okay, limit is independent of variable, so limit h tends to 0 a raised to x minus 1 upon h is log a to the base e. और दूसरा, therefore ये आपको याद रखना है कि अगर वेरिएबल x अप्रोचेस a और हमारे पास a raised to fx है minus 1 upon fx, तो इसका लिमिट कितना आएगा? if fx approaches 0 for x tends to a, तो इसका लिमिट आएगा log a to the base e. इसका लिमिट कितना आएगा? if fx approaches 0 for x tends to a. yes. दूसरा रिजल्ट मैंने डायरेक्टली याद रखने को बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x minus 1 upon x उसी के फॉर्म में है, तो log e to the base e मतलब 1. लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू h minus 1 upon h e raised to h minus 1 upon h वेरिएबल approaches 0, तो इसका लिमिट कितना आएगा? 1. and same way important is this के लिमिट x tends to a e raised to fx minus 1 upon fx, इसका लिमिट कितना आएगा? ये कौन से फॉर्म है? e raised to h minus 1 e raised to fx minus 1 upon fx e raised to x minus 1 upon x e raised to fx minus 1 upon fx, इसी के फॉर्म में है. पर यहाँ पे x approaches 0, यहाँ पे h approaches 0, तो अगर if fx approaches 0 और x tends to a, तो इसका लिमिट भी 1 आएगा. समझ गए? और फिर ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और a raised to x. a raised to x is the exponential function, log x to the base e is logarithmic function. और log का रिजल्ट आपको क्या याद रखना है कि लिमिट वेरिएबल x approaches 0 log of 1 plus वेरिएबल x to the base e upon x, इसका आंसर 1 है. Okay, so therefore limit, therefore same way अब अगर instead they are asking for limit h tends to 0, variable is h, so variable x tends to 0, then limit of variable x tends to 0 log of 1 plus variable h to the base e upon h, इसका लिमिट भी 1 आएगा. और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिट में वेरिएबल x अप्रोचिंग a है, तो log of 1 plus फंक्शन fx है बड़ा सा अपॉन fx, गलती क्या है? तो base e होना चाहिए. यहाँ पे वेरिएबल x है, तो log of 1 plus fx upon fx और log to the base e, इसका लिमिट कैसे निकाला? आप ध्यान से देखिए. वेरिएबल x approaching 0, वेरिएबल h approaching 0, उसी के फॉर्म में है ये. तो log of 1 plus fx upon fx, तो fx किसको अप्रोच करना चाहिए? fx अप्रोच करना चाहिए 0 को जब x अप्रोचिंग है. if fx approaching 0 और x tends to a, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1. तो ये होगा, उसका लिमिट 1 आएगा. तो ये तीन रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, एक्चुअली तीन रिजल्ट्स ही हैं, पर लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल वो समझाया और उसका एप्लीकेशन आपको समझाया. इसके लिए तीन रिजल्ट्स हो गए और उस बहाने आप एक ही रिजल्ट को, अगर वो मैं रिजल्ट खाली एक बार लिख दूं 3 रिजल्ट्स, तो अब देखो 3 3 6 सारे रिजल्ट्स ये
ये रिजल्ट और हम 3 बार लिख चुके हैं, तो हो चुका है। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सो लेट मी सॉल्व सप्लीमेंट्री मटेरियल में 3 एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 5 में कंसीडर कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 5 ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल, L is limit x tends to 0 okay, limit x tends to 0 e raised to 3x, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, e raised to 3x, e raised to 3x है, yes, e raised to 3x minus 1 upon x, ये क्वेश्चन है। तो लॉगरिथम ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कैसे सॉल्व करोगे? ओके, हियर फॉर x tends to 0, for x tends to 0, 3x किसको टेंड करेगा? डायरेक्ट लिखूंगा मैं, for x tends to 0, 3x किसको टेंड करेगा? 3 into 0 0। ओके, अब देखो L हो जाएगा लिमिट, और हमारे पास वो रिजल्ट क्या है? ओके, तो अब मैं इसको कैसे लिखता हूं? therefore L is limit x tends to 0, लिमिट x tends to 0, e raised to 3x है, और 3x किसको टेंड कर रहा है? 0, सो e raised to 3x minus 1 अपॉन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x, ओके लिखा मैंने, तो e raised to 3x minus 1 अपॉन 3x, x सेट हो गया, ये 3 कैंसिल करने के लिए मैं इधर 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कौन से फॉर्म में रिजल्ट ये है, अब ध्यान से देखना, 3h tends to 0 को आप हाईलाइट कर देना, 3h tends to 0 को आप हाईलाइट कर देना, 3x tends to 0। नाउ मैंने h में आपको रिजल्ट समझाया, लिमिट h tends to 0, e raised to h minus 1 upon h क्या होता है? 1, and limit of constant k is k। तो उस लॉजिक से don't you think the answer is ready? Don't you think the answer is ready? Yes, 3x tends to 0, so e raised to 3x minus 1 upon 3x, h की जगह पे 3x है, h की जगह पे 3x है, 3x tends to 0, h tends to 0 उसी फॉर्म में है। तो अल्टीमेटली ये l क्या आएगा? l becomes पहले का लिमिट 1 और लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट 3, सो l is 3, फिनिश्ड। सी ये रिजल्ट्स आपने 2-3 बार अच्छे तरीके से लिख लिए और आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लिए, तो बहुत 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 इजी है। और कोई भी स्टूडेंट, average student, below average student, anyone can get this limits, derivatives, trigo, inverse trigo, integration, application of integration, application of derivatives, differential equations, वो सारे एरिया इक्वेशंस, उसको कैलकुलस बोलते हैं, सारे कुछ स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और उसमें बिलो एवरेज, जिसका मैथ्स वीक है और जिसका मैथ्स टफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू अटेंड द वे आई एम डूइंग, every student can understand and score maximum. You just have to work hard and understand the way I am doing. So this part is clear. Now example 6, L is limit x tends to 0, limit x tends to 0, e raised to x minus sin x minus 1। ट्राई करो कैसे करोगे? e raised to x minus sin x minus 1 upon x। क्वेश्चन ये रिलेटिवली इजी है, ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे ये पहले करना चाहिए, कौन सा? एग्जांपल 6, नो प्रॉब्लम, मुझे एग्जांपल 6 करना चाहिए था। सी जो एक्सरसाइज है कैन बी फिनिश्ड विद इन 10 मिनट्स स्पीडीली इफ यू वांट टू सॉल्व, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस हैं, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो रिजल्ट्स वापस लिखे और ये समझ में कर रहा हूं एग्जांपल्स। तो आप देखो, कैन आई राइट लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपको पता है रिजल्ट ये है, e raised to x minus 1 upon x tends to 0 1 है, तो e raised to x minus 1, तो क्लब करो e raised to x, हम क्लब करेंगे e raised to x minus 1 upon, मैं 1 को e raised to x के साथ लूंगा, e raised to x minus 1 minus sin x whole upon x, जस्ट ऐसा रीअरेंज किया। फिर मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं लिखूंगा
e raised to x minus 1 upon x minus sin x upon x. सिंपल. अब मैं इंडिविजुअली लिमिट दे दूंगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x minus 1 upon x minus लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x. ठीक है, मैंने इंडिविजुअल लिमिट दे दिया. तो अब आप देखो, नाउ यू सी, ये लिमिट लगाने पर क्या होगा? ये डायरेक्टली रिजल्ट्स हैं, ये डायरेक्टली दो रिजल्ट्स हैं. तो वो दो रिजल्ट्स ही आपको अप्लाई करना है. एक है लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x minus 1 upon x 1 और एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x. रिजल्ट आपको याद है, सीधा रिजल्ट ही लगाना है. l आएगा 1 minus 1, l आ गया 0. चेक करो. यस, सी दैट इज द वे मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चंस इजी है. अगर आपने वो रिजल्ट्स जो चारे पास की है, अगर आपने वो अच्छे तरीके से लर्न कर दिए और यू हैव अंडरस्टूड द वे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. बिकॉज मैं रिजल्ट समझाते टाइम क्यों 3 या 4 बार लिख रहा हूं और एक ही चीज रिपीट करता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. हो सकता है पहली बार में कुछ स्टूडेंट समझेंगे, स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा. दूसरी बार रिपीट करूंगा तो मेजॉरिटी को समझ में आएगा, कुछ को थोड़ा डाउट रहेगा. और तीसरी बार मैं क्यों रिपीट करता हूं? ताकि सबको समझ में आ जाए और आगे किसी को समझ में आ गया उसको भी फायदा हो जाएगा ना. एग्जांपल नंबर 7 में कर रहा हूं. ट्राई टू सी इफ यू कैन डू इट ऑन योर ओन. ओके, थिंक कैसे करोगे? l इज लिमिट x टेंड्स टू क्वेश्चन आई बिलीव गलत है, x टेंड्स टू 1 आना चाहिए. क्वेश्चन आई बिलीव देयर इज सम मिस्टेक इन दैट क्वेश्चन. एग्जांपल नंबर 7 में करेक्शन है. यस, x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1 है और क्वेश्चन में है log x to the base e upon x minus 1 on x minus 1. ये क्वेश्चन है. दिस इज द करेक्टेड क्वेश्चन. करेक्शन करना है. कुछ बुक्स में मिस्टेक है, जैसे एग्जांपल नंबर 5 में e raised to 3x की जगह पे e raised to yx लिखा था, वैसे इधर करेक्शन है x टेंड्स टू 1 है क्वेश्चन. ठीक है ना. थिंक लॉगरिथमिक रिजल्ट क्या था? लॉगरिथमिक रिजल्ट था लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x upon x. पर वहां पे x किसको अप्रोच करना चाहिए? वहां पे x किसको अप्रोच करना चाहिए? वहां पे x अप्रोच करना चाहिए 0 को. यहाँ पे वेरिएबल x किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को. यहाँ पे x minus 1 है, तो मैं क्या करूंगा? मैं चेंज ऑफ वेरिएबल करूंगा. लेट x minus 1 is h. Here x tends to 1. So therefore x minus 1 approaches x here 1 minus 1. Therefore x minus 1 tends to 0. Therefore h tends to 0 आ गया. x minus 1 h है. ओके. और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन में x वेरिएबल है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेरिएबल h में. ना x minus 1 is h, तो x क्या मिलेगा? 1 plus h plus 1. I can write 1 plus h. No problem. Clear? तो इस क्वेश्चन में मैं सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा हूं? x टेंड्स टू 1 है तो टेंड्स टू 0 चाहिए, तो x अप्रोचेस 1, तो x minus 1 किस पे अप्रोच करेगा? 0 को. इसलिए मैंने x minus 1 को h रखा, इसलिए मैंने x minus 1 को h रखा. x टेंड्स टू 1 है, v1, तो x minus 1 किस पे अप्रोच करेगा? x की यहाँ पे 1 रखो, 1 minus 1 0, तो x minus 1 अप्रोचेस 0. x minus 1 क्या है? सच अप्रोचेस 0, h अप्रोचेस 0. नया वेरिएबल x minus 1 is h. x वेरिएबल है, पुराना वेरिएबल h नया वेरिएबल है, तो h में ही सब कुछ लाना पड़ेगा. तो ये x मुझे नए वेरिएबल h के टर्म्स में लाना पड़ेगा, तो x is h plus, और मैंने क्या लिखा? 1 plus. अगले क्वेश्चन आप देखो, l को just see the way it gets converted into very easy question. Limit
therefore L, which is log of variable x approaching 1, log of very important x to the base e upon x minus 1. अब x किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, तो h मैंने हाईलाइट किया है, h किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, h किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो therefore L जब x टेंड्स टू 1 है, जब x टेंड्स टू 1 है तो h टेंड्स टू 0 है, तो h टेंड्स टू 0 है। फिर x माइनस 1 क्या है h, और log ऑफ x क्या है h के टर्म्स में 1 प्लस h टू द बेस e। सिंपल। तो इसी चीज को अगर मैं शांति से लिखूं, अब देखो सीधा आंसर आ गया, therefore L is limit h tends to 0, h tends to 0, log ऑफ वेरिएबल h है, नया वेरिएबल है, h tends to 0 हाईलाइट किया है, और x क्या है 1 प्लस h, so log ऑफ 1 प्लस h टू द बेस e अपॉन h। ये सीधा रिजल्ट क्या है, सीधा इसका आंसर कितना है 1। चेक द आंसर, यस दैट्स द आंसर 1। so therefore L is 1 because आप ऐसा है तो दूसरे वेरिएबल में लिख दो, because लिमिट y tends to 0 log of 1 plus y to the base e upon y is 1। ऐसा मेंशन कर देने का, सिंपल आंसर आ गया L is 1। Understood how I have done the change of variable and change of limit। मैं इसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चेंज ऑफ वेरिएबल और चेंज ऑफ लिमिट मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये रिजल्ट है log of 1 plus y upon y, y approaching 0, x approaching 1 है तो x minus 1 approaching 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको h लिया। Just 1 minute, let me see if I can solve one more question or not। So I hope you understood this। Okay, what I will do is that instead of solving another question, let me give you the revision of the exponential function and logarithmic functions। Okay, तो पहले logarithmic function को हम कैसे डिनोट करेंगे, fx is equal to log x to the base e is logarithmic फंक्शन। हमारे लिए log का बेस log x to the base e आएगा, और अगर इस इलस्ट्रेशन में आपको अगर डाउट है तो what I will do is that I will solve this illustration again in the next video lecture along with the supplementary material 13.2 exercise का solution। Don't worry about it। पर हाँ, this limits and derivatives, trigonometry limits and derivatives, खास करके आप ऐसा कह सकते हो कि limits and derivatives, you would have heard the word calculus, so your calculus has started, और majority of the calculus syllabus is in 12th standard, और 6 chapters 13 chapters में से 6 chapters are based on limits and derivatives and integration, और हाँ ट्रिगो तो आना ही चाहिए जिसका वेटेज अराउंड 50 to 55 मार्क्स है आउट ऑफ 100 मार्क्स। डोमेन आर प्लस याद रखने का, रेंज अरे कोडोमेन आपको याद रखने का आप, और रेंज आपको याद रखने की आप। सो व्हाट यू विल राइट, देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अरे लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे हो जाएगा, उसका डोमेन क्या है r प्लस कोडोमेन r, और fx हम कैसे लिखेंगे log x to the base e, where जहां पे x log x to the base e, x कहां पे होना चाहिए डोमेन ऑफ f में, x belongs to r plus is logarithmic function, is logarithmic function। हो गया। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन में जो e आया e, तो उसके बारे में लिखो कि e is an irrational number। ये जो e आ रहा है log x to the base e, तो वो एक irrational number है। Here नोट करके in log x to the base e, e जो आता है is irrational number, और उसका approximate value कितना था 2 point, e is
2.7 2.71 8281 that is approx. Okay, so therefore 2 is an irrational number और e का वैल्यू है between 2 and 3. फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे सिलेबस में तो e raised to x ही दिया है आपको, पर हमेशा e raised to x नहीं होगा, a raised to x भी हो सकता है और a का स्पेशल वैल्यू इज e, ऐसा याद रखना. फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन in exponential function what do you remember that fx is equal to, please remember, fx is equal to a raised to x is exponential function इसका डोमेन r होता है, उसकी रेंज हमेशा याद रखने का, डोमेन और रेंज, इसकी रेंज r प्लस होगी, इसकी रेंज r प्लस होगी और इसका कोडोमेन डिपेंड्स, इन सम बुक्स इट इज, इसका कोडोमेन इन सर्टेन बुक्स दे कीप एज r और r plus. Okay, we will keep r or r plus depends. Okay, so therefore f डोमेन क्या है r, कोडोमेन यू कैन कीप r और r plus. मैं आप कह सकता हूं, आई बिलीव पिछली बार मैंने क्या रखा था, r रखा था, f r to r plus fx is a raised to x, पर हाँ इधर डोमेन f of x is a raised to x, x कहां बिलोंग करना चाहिए डोमेन में, डोमेन क्या है, हाँ तो आप याद रखो x belongs to r is exponential function. और हाँ यहाँ पे जो a का वैल्यू है, यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो आपको याद रखना है कि here a belongs to r plus ही होना चाहिए. a is a positive real number. a is a positive real number. Here a is a positive real number. Here a belongs to r plus मतलब a is greater than 0. और आपको ये याद रखना है कि for x belongs to r, for all x belongs to r which is in the domain, a raised to x कैसा है, a is positive, तो पॉजिटिव रेज टू कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रेज टू 0 1 होगा, पॉजिटिव रेज टू कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है. ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दूसरा आप क्या याद रखोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दूसरा आप e raised to x याद रखोगे. ओके, सो e raised to x और e क्या था उसके बारे में लिख दो. नेक्स्ट इज exponential function. Special is fx is equal to e raised to x is exponential function. डोमेन क्या है याद रखना है, डोमेन मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डोमेन इज r, रेंज e raised to x, e is positive 2 और 3 के बीच में, so range r plus, कोडोमेन depends, in some books it is r, in some books it is r plus, so r or r plus. F is a function, domain क्या है r, I will keep r plus, fx is equal to e raised to x, जहाँ पे x belongs to r, x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, fx is e raised to x, fx is e raised to x, तो उसमें x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए डोमेन में, डोमेन क्या है r, so definitely what I will write x belongs to r is exponential function. Okay, is exponential function. Okay, अब आपको ये भी पता है for all x belongs to r, डोमेन मैंने क्या बोला था, a raised to x greater than 0 होता है,
तो आपको याद रखना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इन द डोमेन e raised to x is always positive. Okay, now here e is an irrational number. Okay, उसका वैल्यू between 2 and 3 है and 2 less than e less than 3. Okay, और वो approximate वैल्यू कितना 2.71828183 2.71 yes 2.71828183 approximate value. So that way you can write कि e is an irrational number between 2 and 3. और आपको ये पता होना चाहिए कि log x f from r plus 2 r fx is equal to log x to the base e जहां पे x belongs to r plus agree is an exponential is logarithmic function था is logarithmic function वो तो हम लिख चुके हैं पर log 1 क्या होता है x का वैल्यू 0 अगर x का वैल्यू 1 है तो log 1 क्या आता है log 1 क्या आता है 0 और आपको पता है कि 1 से बड़ा कोई भी हो उसका log अगर आप निकालोगे log 2 to the base e या log 2 to the base 10 log 2 to the base e अगर आप निकालते हो या log 3 to the base e तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा और दूसरा log 1 to the base e 0 होता है और अगर कोई भी नंबर बिटवीन 0 और 1 रखोगे तो उसका log का वैल्यू नेगेटिव आता है तो आपको याद रखना है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r जो डोमेन में है log x to the base e is a real number. Okay, so that way we can conclude our discussion of the logarithmic function, exponential functions and the results of exponential limits, logarithmic limits और उसके बेस पे तीन illustration हमने की है. Just 1 minute. Let me see if I can solve one more question. No, I believe this is enough. और supplementary material की जो exercise है that I will finish in next video lecture and उसके बाद मैं start करूँगा derivatives और derivatives में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला आने चाहिए द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस अगर वो फॉर्मूलाज आपने नहीं किए तो फिर आप लिमिट्स के क्वेश्चन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हमको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो वो आपको नहीं आएंगे तो सारे फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिगो आपको लर्न करने पड़ेंगे ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू वर्क हार्ड टेक केयर डोंट वेस्ट टाइम